Good morning, students. The remaining part of the Coulomb's law is started now. Since देखिएगा अभी कल उस दिन हम लोगों ने लास्ट डे तक देखा था कि कूलम्स का लॉ का जो फॉर्मूला था वो आपका F इज इक्वल टू क्यू के स्मॉल Q1 Q2 ओवर आर क्यूब आर यूनिट वेक्टर। अब हम बात करेंगे कूलम्स लॉ के कुछ इंटरेस्टेड पॉइंट्स की। जैसे अगर हम लोग चूँकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होता है, लाइक दैट फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देन वी आर कंसीडर अ सिंपल केस हेयर। लेट अस कंसीडर द 2 point charges Q1 and Q2 and the position vectors from these for these two charges from the point O is R1 and R2. From the above figure, the two considerations are assumed. Two considerations are assumed. First, the force acting from Q2 to Q1 is F12. Second point, the force acting from Q1 to Q2 is F21. These forces are equal in magnitude but different in direction. That is, F12 is equal to minus F21. Let us consider this equation as the equation number 3. Then again, from the figure, it is also clear that the position vectors number 1 from the charge Q1 to Q2 is denoted by R21, where R21 is equal to R2 minus R1 vectors. This is the equation number 4. And the second one is from charge Q2 to Q1 is denoted by R21, that is equals to R1 minus R2. From the equation number 4 and 5, it is also clear that R21 is equal to minus R12. This is the direction of the force will decide. We can say with this the direction of the force will decide. Now the force will be F12 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R12 into R12 unit vector. That is the equation number 7. And F21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R21 square R21. That is our this equation considered as equation number 8, where we are very much familiar with this concept. R12 is the unit. If we find the unit vector of R12, that is the R12 is equal to R12 vector over R12 magnitude. Similarly, R21 vector is equal to R21 cap is equal to R21 vector over R21. Clear? Now from the equation 7 and 8. Now from the equations 7 and 8, it is clear that the force is calculating as according to the position vector. This is the important thing. जब force जो होगा वो आपका जो force की जो कैलकुलेशन होगी वो आपकी पोजीशन वेक्टर्स के अलोंग चलेगी. इफ़ द चार्ज आर सेम इन नेचर, द फोर्स विल डिपेंड ऑन द पोजीशन वेक्टर. अगर फोर्स चार्जेस जो हैं वो आपके सेम नेचर के हैं तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आपकी पोजीशन वेक्टर्स पर डिपेंड करेगी, जो कि हम लोग देख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21. दैट इज फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 6. दिस इज consider this equation will be easily calculated from the equation number 6. You can see that in the Coulomb's law, that is the important point. You can अच्छे से याद रखना इसे. In the Coulomb's law, the force is acting between the 2 point charges only in the vacuum. Now we are going through the
we are going with the numerical. Find the force between the electron and proton if the distance between them is 10 to the power minus 10 meter. Then also find the acceleration for electron and प्रोटॉन। तो इसमें हम लोगों को दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट चीज़ तो कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आके फोर्स कितना काम करता है, और दूसरा कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो एक्सेलरेशन है वो क्या है। तो इसमें हम लोग दो तरह के दो फार्मूले या दो लॉज को याद रखेंगे। फर्स्ट थिंग, अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सिर्फ वर्ड दिए हुए हैं, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं तो हम लोग अच्छी तरह से इस चीज़ को पहले से ही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे चार्ज होता है जो वो इक्वल होता है। दोनों के ऊपर चार्ज कैसा रहेगा आपका, इक्वल चार्ज रहता है। दोनों के ऊपर फोर्स चार्जेस कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, जिनकी जो क्वांटिटी है 1.6 × 10 to the power minus 19 कूलम की होती है, लेकिन दोनों की नेचर डिफरेंट होती है। यहाँ पे एक चार्ज जो है आपका नेगेटिव होगा और दूसरा चार्ज आपका पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हम लोग अच्छी तरह कूलम्स लॉ को जानते हैं। कूलम्स लॉ के अंदर जो फॉर्मूला था वो ये था F = 1/4πε0 Q1 Q2 over R²। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि Q1 = 1.6 × 10 to the power minus 19 कूलम if we consider Q1 as a electron and Q2 = 1.6 × 10 to the power minus 19 कूलम as a proton। यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसे एक को नेगेटिव लेके चल सकते हैं, दूसरे को पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। नाउ अगेन हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 1/4πε0 = 9 × 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। और हम लोग जानते हैं कि अब इन सारी वैल्यूज़ को कूलम्स लॉ में अप्लाई करते हैं। देन F = 9 × 10 to the power 9 × 1.6 × 10 to the power minus 19 स्क्वायर over 10 to the power minus 10 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो 10 to the power minus 10 मीटर है ये आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे जब इस वैल्यू को पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फार्मूले में फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2.3 × 10 to the power minus 8 न्यूटन। ये तो हमारा हो गया फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में काम करता है। मज़ेदार बात है कि ये फोर्स फिक्स है, इसकी वैल्यू याद रखिएगा, क्योंकि अगर 10 to the power minus 10 मीटर का डिफरेंस दिया हुआ है तो ये हमारा फिक्स वैल्यू है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा कि अगर हम लोग 10 to the power minus 10 मीटर जो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, इस डिस्टेंस के हिसाब से आप इसके फोर्स की वैल्यू को वेरी करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी है जो फिक्स बनी रहेगी, जो कभी खुद को नहीं बदल पाएगी, वो है इसका 2.3 फिक्स है। यहाँ पे सिर्फ जो चेंज होएगा वो 10 to the power minus 8 न्यूटन जो दिया हुआ, जो ये आपकी जो अदर वैल्यू दी हुई है, जैसे ये जो वैल्यू दी हुई है बस चेंज सिर्फ इसी वैल्यू के अंदर आएगा, बाकी किसी भी वैल्यू में यहाँ पे चेंज नहीं होएगा। यहाँ पे जो 2.3 दिया हुआ है दैट इज़ द फिक्स वैल्यू। तो कभी भी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अगर डिस्टेंस दिया हुआ 10 to the power minus 10 मीटर दिया हुआ है तो आप ईजीली कैलकुलेट इसे कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोनों के बीच में फोर्स कैसे काम करेगा। तो इसके लिए हम लोग एक सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे, न्यूटन का सेकेंड लॉ, जिसे आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि न्यूटन के सेकेंड लॉ के द्वारा ही आप F = ma को कैलकुलेट करते हो, वैल्यू को इसको डिनोट करते हो। तो यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फोर्स की बात करनी है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स था वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ यहाँ पे हम लोगों को दोनों के बीच का, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का अलग अलग एक्सेलरेशन क्या होगा ये निकालना होगा आपको। तो E = F/m हो गया फ्रॉम द फॉर्मूला। नाउ यहाँ पे हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन के मास की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप लोगों ने 11th क्लास में शायद इसे याद रखा होगा, पढ़ रखा होगा, जिसकी वैल्यू होता है me = 9.11 10 to the power minus 31 किलोग्राम होता है। और इसके बाद हम लोगों को अगर कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट किया हुआ। ए को हम लोग जानते हैं, ए को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं और ई लगा रखा है, इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोगों ने एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी है, पर्टिकुलर नाम दे दिया है। पर्टिकुलर नाम दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हो गया, जो कि हम लोग फोर्स पहले ही निकाल चुके हैं, 2.3 × 10 to the power minus 8 मीटर
न्यूटन, और जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास होएगा वो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 हो गया है। तो इस सारी वैल्यूज़ को जब कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकेंड सिचुएशन जो आएगी वो प्रोटॉन के लिए रहेगी, और प्रोटॉन की जो वैल्यू, प्रोटोन का जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं MP यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 10⁻⁻27 kg। ये आपका किसका हो गया, प्रोटॉन का मास होएगा। तो इस जगह पे हम लोगों ने AP निकालते हैं यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं। दैट वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड एज 2.3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 1.67 इंटू 10⁻27। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.4 इंटू 10⁻⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों एक्सेलरेशन को आपको देखकर अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन द प्रोटॉन्स एक्सेलरेशन। अब आप इजीली समझ लीजिएगा ये, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से एक्सेलरेट होते हैं जो आपकी इजीली नेक्ड आई से देखे भी नहीं जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक सिस्टम देखते हैं। सिस्टम अगर भी अब तक हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं तो फोर्स कैसे काम करेगा, सिस्टम कैसे काम करता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, यहाँ पे अगर सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे अगर एक सिस्टम दिया हो जिसके अंदर 2 से अधिक चार्ज दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोग 2 से अधिक चार्ज की बात करेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि जब भी कोई चार्ज की बात की जाती है तो चार्ज के बिटवीन में एक फोर्स अप्लाई होता है, और फोर्स हमेशा हमारी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस फोर्स को जब भी हम लोग की वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर रिजल्टेंट वैल्यू को फाइंड करते हैं तो हम लोगों ने सिंपल अलजेब्रिक सम के द्वारा जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तब यही चीज़ मैंने आपको बता रखी है यहाँ पर। जैसे F रिजल्टेंट फोर्स है और F1, F2, F3 आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोर्स। अब अगर हम लोग यहाँ पर इनका जो फाइनली फिक्स फोर्स निकालें या कहा जाए कि इनका रिजल्टेंट वैल्यू को निकालें तो F इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। इस तरह से हम लोगों, अगर 3 है, 4 है, 5 है, तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि Fn तक इसे लेके जाया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हैं। और भी हम लोग वेक्टर एडिशन के और भी कई तरीके होते हैं जिनको हम लोग सिंपल ट्रायंगुलर मेथड हो गया, पैरेललोग्राम मेथड हो गया, इसके द्वारा भी हम लोग इन वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग 2 से अधिक फोर्सेस दिए हुए हैं, 2 से अधिक चार्जेस दिए हुए हैं, तो और उन चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे काम करेगा तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने 3 चार्ज ले रखे हैं, Q1, Q2, Q3, और इन तीनों चार्जेस का एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर किया है हम लोगों ने, जिस पॉइंट को O से प्रेजेंट किया है। O से Q1, Q2 एंड Q3 तीनों के रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर्स हो गए R1, R2 एंड R3। अब यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे चूंकि पॉइंट O के ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं है, तो यहाँ पे कोई फोर्स काम तो कर नहीं से रहा, यहाँ पे कोई फोर्स भी काम नहीं करेगा, कोई सिंगल पॉइंट चार्ज होगा। तो अब सिंपल सी एक बात यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखने वाली बात बता रहा हूँ कि अगर कोई अकेला पॉइंट चार्ज दिया हुआ है तो उसके अंदर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, उसके चारों तरफ सिर्फ चार्ज का फील्ड काम करेगा। अब यहाँ पे सिर्फ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, चार्ज का फील्ड, क्योंकि इस फील्ड को ही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये फील्ड हो गया, अगर अकेला चार्ज दिया हुआ है तो वैसे ही जनरल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन, खाली इलेक्ट्रॉन है तो उसका अकेले एग्जिस्टेंस नहीं होगी कोई भी, उसके साथ में उसके बारे में जानकारी तभी आपको मिलेगी जब कोई दूसरा उसके आसपास रखा हो, कोई चार्ज हो, तभी आप बता सकते हो कि वो चार्ज है या नहीं है। अदरवाइज अगर सिंपली कोई चीज़ रखी हुई है तो आप उसके बारे में नहीं बता सकते हो कि वो चार्ज है या नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर घर में आपने इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन कर रखा है, तभी आप बता सकते हो कि लाइट ऑन होगी। यानी कि अपने उन्होंने जब तक उस सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करोगे तो आप नहीं बता सकते हो कि करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको अगर सर्किट के अंदर डिस्टर्बेंस करोगे तभी आप इस चीज़ को ढूंढ पाओगे। मज़ेदार बात है, अगर कभी कैलकुलेट करना है तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, उसमें ज़रा हाथ लगा के देखो, बड़ा मज़ा आएगा। थोड़ा बहुत झटका लगेगा और उसके बाद हो सकता है अगर ज़्यादा ज़ोरदार करंट होगा तो हो सकता है कि घर वालों को लेके जाना पड़े आप लोगों को, ठीक है। लेकिन इस काम को करना नहीं है, अगर करना भी है तो टेस्टर वगैरह यूज़ करो, आराम से चेक कर लेना, ठीक है बेटा।
तो अभी हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। तो अभी इसके अंदर हम लोग देखा कि हम लोग 3 पॉइंट चार्जेस दिए हुए थे, Q1, Q2 एंड Q3 दिए हुए थे, जहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर एक ओरिजिन पॉइंट O माना था। O के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने Q1, Q2, Q3 की पॉइंट चार्ज पोजीशन वेक्टर्स हो गए R1, R2 एंड R3। अब इन पोजीशन वेक्टर्स के हिसाब से हम लोगों को 2 पॉइंट चार्जेस तो इस तरह के केस के अंदर एक चीज़ याद रखना कि आपको अगर फोर्स को कैलकुलेट करना है तो उसमें कई चीज़ें याद रखने वाली रहती हैं। जैसे कि सबसे सिंपल सी बात है कि हम लोगों को सबसे बढ़िया सी बात याद रखना कि जो फोर्स का कैलकुलेशन होगा वो सिर्फ 2 पॉइंट चार्जों के लिए ही होगा, चाहे सिस्टम में कितने भी चार्ज दिए गए हों। सबसे पहले कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए इस जगह पे हम लोग भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का डिफरेंस ही 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का ही डिफरेंस निकालेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग को 2 पॉइंट चार्ज दे रखा है, Q1 दे रखा है और Q2 दे रखा है, मान लेते हैं हम लोग 3 चार्ज दिए होते हैं, इनमें सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं 2 चार्जेस को। जब इन 2 चार्जेस को आप कंसीडर करोगे तो इन 2 चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हमें ये देखना होगा कि इन दोनों के बीच में आखिर डिफरेंस कितना है, ये दोनों चार्ज कितनी दूरी पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस डिस्टेंस को ईजिली कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर्स की बात की है। तो O से Q1 और O से Q2 के बीच के 2 पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं R1 एंड R2, और हमें एक पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है Q1 से Q2 के बीच का। तो आप लोग आराम से वेक्टर कैलकुलेशन देखते हो कि इसमें हम लोगों ने 2 वेक्टर्स ले रखे हैं, एक वेक्टर O Q1 मान लिया और दूसरा वेक्टर हो गया O Q2 मान लिया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं R12, ठीक है। इस R12, अब जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि F12 इज द फोर्स विच इज एक्टिंग बाय द चार्ज Q2 टू Q1, ठीक है। अब इसी जगह पर हम लोगों ने चार्ज दे दिया F12 का डायरेक्शन देख लिया, इसी तरह से F12 हो गया, इसी तरह से अब पहले हम लोग F12 के बीच का डिफरेंस के बीच का जो सिस्टम कंसीडर कर रखा है, इन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करते हैं F12। उसके बाद हम लोग एक कैलकुलेट करेंगे Q2 और Q3 के बीच में। यहाँ पे हम लोग को पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं R2 और R3, तो हम लोग Q2 से Q3 के बीच का भी डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस हो गया R23 और ये हो गया R12। तो आप लोग आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर R12 की आपसे कहा जाए भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं R1 माइनस R2। इसी तरह से R23 के बीच का R23 की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी R2 माइनस R3। तो इस तरीके से आप इनका पहले पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, फिर इन दोनों फोर्सेस के बीच में डिफरेंट फोर्सेस निकाल देंगे। तो F12 निकालेंगे और F23 निकालेंगे। अभी जरा यहाँ पे फिर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट हैं F12 एंड F23 आर द फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस Q1 टू Q2 एंड Q2 टू Q3। F1 इज देयर रिजल्टेंट। हम लोगों ने F1 था, वो जो आप लोगों ने सेंटर लाइन देख रहे होगे उस डायग्राम के अंदर, वो आपको आराम से समझ में आएगा। F1 यानी कि F1, दिस वैल्यू इज द रिजल्टेंट ऑफ द F12 एंड F23। तो दिस वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय द सिंपल ट्रायंगुलर मेथड एंड पैरेललोग्राम मेथड। तो F12 एंड F23 आर द फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। हम लोग निकाल सकते हैं द रिजल्टेंट इज कैलकुलेटेड एज बिलो। F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F23 because there are only 2 forces. Similarly, F12 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R12 square R12 unit vector. That is the equation number 3. Similarly, F23 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R23 का square R23 cap. दैट इज द फोर्थ इक्वेशन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे F1, यानी कि अगर F1 निकालना होगा तो हम लोग यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। मीन्स कि हम लोग 3 और 4 से जो F12 और F23 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अप्लाई कर देते हैं। जब उसे अप्लाई करेंगे तो देन वी आर गेटिंग हेयर 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 ओवर R23 कैप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 ओवर R12 स्क्वायर R12 यूनिट कैप यूनिट वेक्टर प्लस Q2 Q3 ओवर R23 का कैप।
अब इधर से हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं। अब इसको हम लोग पूरी वैल्यू को कॉमन ले लेंगे तो Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर प्लस Q2 Q3 ओवर R23 यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 2 से अधिक यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट चार्जेस ले रखे हैं। अगर हम लोगों ने 3 से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं यानी कि हमारे पास पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं एंड पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं। लेट अस कंसीडर इफ देयर आर एंड पॉइंट चार्जेस इन द सिस्टम, किसी भी सिस्टम के अंदर या वैक्यूम के अंदर, सिस्टम यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कोई वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर हम लोगों ने 2 से ज़्यादा पॉइंट चार्ज यानी कि एंड पॉइंट चार्जेस को ले रखा है। तो सिचुएशन में उनका जो रिजल्टेंट है वो सिंपल तरीके से निकाला जा सकता है। एफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस Q1 QN, हम लोगों ने एन पॉइंट चार्ज ले रखा है तो Q1 QN अपॉन R1N स्क्वायर R1N यूनिट वेक्टर। तो ये एक फाइनल फॉर्मूला रहेगा जिससे आप कूलम्स लॉ को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हो, समझ सकते हो। अब इसके बाद ये हमारा पॉइंट चार्ज रहा, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस रहा। अभी हम लोग बात करेंगे इसके बाद जो बात की जाएगी वो बात की जाएगी अभी इसके बाद जो बात की जाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाएगी। अभी तक हम लोगों ने जो बात की है वो सिर्फ कूलम्स लॉ को फिनिश किया है। अभी हम लोग ये मान लीजिए कि कूलम्स लॉ को फिनिश कर दिया है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टेड बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग अपने टाइम पे एक बात पढ़ा करते थे, हमें बताया जाता जो आज देख रहा था मेरे को मिला नहीं, लेकिन बड़ी ऐसी बात थी कि इन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप लोग या ये कह सकते हो कि कूलम्स लॉ के रेस्पेक्ट में जो भी फोर्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं वो बहुत छोटी डिस्टेंस से लेकर बहुत बड़ी डिस्टेंस के बीच में भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं। यानी कि आप अगर चाहें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लेके चले थे, अगर इसी तरह से बहुत बड़े डिस्टेंस के लिए भी कूलम्स के द्वारा कोई फोर्स की वैल्यू निकाली जाए तो आप उस चीज़ को भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको डिफरेंस पता है तो आप आराम से पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस या फोर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप इसे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कल करेंगे और कल के अंदर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा और ये चैप्टर लगभग ख़त्म होने के आसपास ही है, ज़्यादा इसमें टॉपिक्स नहीं है अभी। इसके में नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें कुछ मज़ेदार बातें आएंगी। अभी तो हम लोगों ने बेसिक्स लॉज के बारे में बात की है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस फोर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल दोबारा मिलते हैं, कल दोबारा बात करते हैं। आप आज इन सभी को ढंग से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।